Are you ready to learn? As you know, I have completed present simple, past simple, future simple, 3, and even continuous also. I completed 2 tenses, but today I will teach you perfect tense. Understand? Yes, sir. Do you know the perfect tense? Perfect tense is a tense wherever we talk about the perfection of work. Wherever we talk about the perfection of work. For example, you have completed your homework, you have eaten food, you have done your work is perfect. Okay. But in the case of simple tense, we talk common thing. We talk normal things like he goes to school, he plays cricket, you attend class daily, you speak English. Understand? In simple past, you went to market, I completed my work. Okay? I saw the Taj Mahal. Future simple tense, she will come tomorrow, she will help you. Okay? I will talk to you, I will return your money tomorrow. Understand? And in case of continuous, we talk about the continuity. Okay? When the work is continue, the work is going on continuously. In the case we use continue tense. Continue tense, for example, she is sitting in the class, I am teaching, you are listening. I was teaching yesterday, you were reading yesterday. Mother will be waiting for us. Understand? Now I am asking some question to you. अब मैं रिवीजन के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद में आपको परफेक्ट पढ़ाऊंगा. तो बताइए, वह खेलता है. He plays. Very nice. उसने खेला. He played. Very nice. वह खेलेगा. Very nice. ठीक है. चलो अब कंटिन्यूस में आते हैं. मैं पढ़ा रहा हूँ. वेरी गुड. आई एम टीचिंग. तुम पढ़ रहे हो. यू आर रीडिंग. आई एम आपके हिसाब से सही है. यू आर रीडिंग. तुम पढ़ रहे हो. ठीक है. अगर किताब पढ़ रहे हो रीडिंग और पढ़ाई कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? स्टडिंग. स्टडिंग. ठीक है. मैं पढ़ा रहा था. आई वॉज टीचिंग. तुम पढ़ रहे थे. यू वर रीडिंग. यू वर रीडिंग. ठीक है. हो गया क्लियर? वह आपका इंतजार कर रहा होगा. ही विल बी वेटिंग फॉर यू. अच्छा, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन मोर थिंग. द विच क्लास इज मोस्ट इंटरेस्टिंग? विच क्लास इज मोस्ट इंटरेस्टिंग? लाइव क्लास और ऑफ क्लास? मीन द लाइव क्लास और विदाउट लाइव क्लास? मतलब ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास. तो विच क्लास इज मोर इंटरेस्टिंग? ऑफलाइन. ऑफलाइन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ऐसा क्यों भाई? यही तो सब ऑनलाइन में पढ़ते हो और ऑफलाइन में भी फिर इंटरेस्टिंग ऑफलाइन क्यों होती है? अच्छा हाँ. फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन क्लास, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट, यू कैन क्लियर योर डाउट ऑन द स्पॉट. okay, but in online there is no facility. Okay, yes, really, I will upload this video and you can't ask the question. If you will ask the question, then you are not sure that it will be replied. Okay, you will get a proper answer of the question. क्योंकि निर्भर करता है कि जिसने वीडियो बनाया उसके पास इतना समय है कि नहीं. मतलब आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो आप वहाँ भी. अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई भी सिर्फ ऑनलाइन क्लास से स्पोकन इंग्लिश सीख सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट इज योर ओपिनियन? कैन समवन लर्न इंग्लिश ऑन द बेस ऑफ ऑनलाइन क्लास ओनली? हाँ, इफ ही लर्न्स विद कंसंट्रेशन कैन लर्न प्रॉपरली. ओके, यू एक्चुअली यू आर you may be right. Actually you are talking in a double concept. She say, sir, if he studies with concentration he can learn online. If he does not study with concentration he can't learn even offline. ये कह रहे हैं कि वो ऑफलाइन भी नहीं सीख सकता, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ेगा. ये तो बात हुई, आपने सही कहा. पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन में सीख सकते हैं? देखिए, कंसंट्रेशन इज द मैटर. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस. विदाउट कंसंट्रेशन you can't understand what is going on in the class. You forget the content. Okay, concentration is a type of a presence or a presence of your mind, that your mind and body both are present. You are focusing your total attention, your full attention on the content. That is the concentration. Okay, and other word we call it the sincerity. Means that you are not involved in other work while studying. Some students are busy with unnecessary conversation with their friends in the class, so they can't learn properly this way. But when the students are fully concentrate to know the what will happen afterward, in for example, when we watch movie in the talkies, we watch movie and image the next accident. Am I right?
हम फिल्म देखते हैं तो हम अगली घटना को कल्पना करते हैं कि नहीं, कि यार इसके बाद ये हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि इधर से एक्टर जा रहा है दौड़ते हुए, तो आपको लग रहा है कि वहाँ से हीरोइन आ रही होगी पक्का दौड़ते हुए, या आपको लग रहा है कि जब हीरोइन पेड़ से गिरेगी, तो भारतीय फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है, आपको पता है कि ये नीचे पक्का गिरेगी नहीं, इसे कोई ना कोई हीरो जरूर कैच करेगा बीच में। और जब एक्ट्रेस को गुंडा पकड़ लेता है, उसको बंदूक से मारता है, तब भी आप एक कल्पना करते हुए, ये मार ही नहीं सकता, आ रहा होगा कहीं से कांच फोड़ के। और वो जो गुंडा है वो मारता है, डायरेक्ट नहीं मारता, वो भी उसके कनपटी में लगा के, अब बोल, आएगा तेरा मजनू तुझे बचाने के लिए, मजनू। फिर वो फोन लगाएगी, मजनू जल्दी है, तेरी लैला तड़प रही है। वो बोलती है, शेखर जल्दी आओ, इन कुत्ते कमीनों को सबक सिखा दो। ठीक है, मतलब भारतीय फिल्मों में इतना खतरनाक का मतलब थ्रिलर होता है, कितना कहना चाहिए कि कुछ भी, मतलब जो है कि कुछ भी, एक आदमी 50-50 को मार रहा है, और होता यही है। फिर वो जो मारेगा नहीं, उसको कनपट्टी में लगा देगा, और इतने में कांच फोड़ के आएगा एक उधर से, और ढिशुम करके लात मार देगा। अरे भैया तुझे मारना है, तू लगा फटाक से मार, खत्म कर फिल्म। लेकिन नहीं, उसमें बड़ा सस्पेंस रहेगा। अच्छा, बंदूक भी चलेगी तो इतने आसानी से नहीं जाता छर्रा, बंदूक का छर्रा, बंदूक चलेगी जाएगा, धीरे 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 जाएगा छर्रा, और हम लोग उसे, और हीरो उसके इधर से आएगा ना, इधर से ऐसा, हीरो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, पीछे गुंडे को लगेगा, और वो जाके, मतलब देखो यार, फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे तुम लोग। मतलब बंदूक का जो वेग है, मतलब आदमी का वेग बंदूक के वेग से ज्यादा हो रहा है, दूर हो गया। और तो और कुछ तो और महान और बड़े वाले रहते हैं, हाथ में सिक्का रखा रहेगा, ऐसे पकड़ लेगा बंदूक के छर्रे को, बता देगा जे देख ले मेरे पास है। मतलब कुछ भी कर रहे, एंड बी एंजॉय दिस टाइप ऑफ मूवीज, और हम इस टाइप की मूवी का बड़ा आनंद लेते हैं। ठीक है, एक बार तो और एक हिट हो गई थी, बंदूक आती यहाँ से और बीच में उसने तलवार लगा दी, 2 टुकड़े होकर 2 लोग मर गए एक ही बंदूक से, एक ही छर्रे से 2 मर गए। वाओ, ठीक है, व्हाट इज दिस? आई थिंक दे इंडियन मूवीज आर टोटली फुली एंटरटेनिंग मूवीज कह सकते हो आप। इंडियन मूवीज आर फुली एंटरटेनिंग मूवी, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ रियलिटी, देयर इज नो कनेक्शन विद रियलिटी ऑफ इंडियन मूवीज। हम लोग ऐसे में मजे भी लेते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बिल्डिंग पर से अजय देवगन हीरोइन को बिठालता है, एक्ट्रेस को, और एक्ट्रेस को आग लग जाएगी, उसको तो पूरी उसकी मोटरसाइकिल उसे पानी में चला देगा, वो बिल्डिंग से नीचे जंप मार देगा। आपने देखा होगा जरा से पत्थर से बाइक स्लिप थी तो हाथ पैर टूट जाते हैं आपके, जरा से स्लिप होने में। एंड दे आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर सो मच क्रेजी टू वॉच इंडियन मूवीज। देयर इज नो कनेक्शन ऑफ रियलिटी विद इंडियन मूवीज, दे आर बियॉन्ड द रियलिटी से काफ़ी परे होती हैं। ठीक है, डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ मूवी? तो वही हम कह रहे हैं कि स्टडी से इसे किस प्रकार जोड़ सकते हैं हम लोग, कि जब कभी भी हम पढ़ते हैं, वेन एवर वी स्टडी, तो आप दूसरे क्षेत्रों में कितनी कल्पना करते हो, कितनी कल्पना करते हो, अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होगा, करते हो कि नहीं करते? इसके पहले ये हुआ होगा, करते हो कि नहीं? काश हम वैसी कल्पना पढ़ाई में भी कर लें। तो अब कल्पना कब करोगे? जब आप पूरा मैटर पता होगा, पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, और अब क्या होगा। और ऐसी कल्पना, हम ऐसी सोच यहाँ करें तो अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया, तो उसके बाद कंटिन्यूस आता है, तो आपको लगना चाहिए कि सर आप कंटिन्यूस पढ़ाएंगे। अगर ना पढ़ाया तो बात अलग है, पढ़ा दिया तो अच्छी बात है। अगर मैंने आपको बताया यहाँ पे कंटिन्यूस सिंपल कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का सिंपल, तो आपको लगेगा कि सर आप पास्ट सिंपल बता सकते हैं इसी का थोड़ा सा आगे। ठीक है, मैंने अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बताया तो आप एक कल्पना कर सकते हो सर इसके बाद नेगेटिव बता सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव बताया तो आपको फिर कल्पना करना चाहिए कि सर इसका इंटरोगेटिव बता सकते हैं। अपने आप को इन्वॉल्व रखने का तरीका बताया मैंने कि किस प्रकार अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर मैंने पूछा कि वह मर चुका है, तो आपके दिमाग में एक सेंटेंस आना चाहिए कि सर वह पागल हो चुका है, इसका क्या होगा। ठीक है, ठीक है, वह मुझे भूल चुकी है सर, इसका क्या होगा। देखो ये क्रिएटिविटी है। अगर आप ऐसा पूछते हो इसका मतलब यू आर इन्वॉल्व्ड, आपको मतलब ही नहीं, कोई पढ़ा रहे हैं, आप बिल्कुल देख रहे हैं कहीं, योर बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास, आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे समाधि में लीन हो। देखे नहीं, जब मैंने बोला कि यस बताओ इसका, तो आप बोल रहे हैं क्या बताएं सर, तो फिर होगा क्या, क्या बताएं सर, मीन्स यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द स्टडी, द बेस्ट वे टू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ। अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, इन्वॉल्व कर लो, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूस ये पढ़ा दिए। ठीक है, आज हम परफेक्ट पढ़ते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है, मैंने इंग्लिश में भी बताया, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, व्हेन द वर्क और एनी वर्ब हैज़ बीन डन, जब कोई काम पूरी तरह हो चुका है, जब किसी परफेक्शन की बात की जाती है कि ये हो चुका है, तब वहाँ पे हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट क्या बताता है आपको कि मैं ऐसा करता हूँ, साधारण बात है, मैं चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ठीक है,
दरवाज़ा खोलता हूँ, मदद करता हूँ लोगों की, आदर करता हूँ आपका सम्मान करता हूँ, आपका इज्जत करता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अपना जीवन जीता हूँ खुशी खुशी। ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। और कंटिन्यूस में क्या होता है? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वर्तमान में मेरी क्या स्थिति है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, वह दौड़ रहा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है? सब चीज़ हो चुकी। क्या होता है? सब हो चुका, ठीक है। और इसका फार्मूला भी सारा है और सबसे इजी भी है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। पास्ट में करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और फ्यूचर में करेंगे तो प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। ओके, चलो, हो चुका है कोई भी काम। जब भी हिंदी सेंटेंस में कभी ऐसा पाओ आप, वह मर चुका है, वह जा चुका है, उसकी शादी हो गई है, वह पागल हो गई है, वह भग गई है, ठीक है, या वह तुम्हें भूल चुका है, ठीक है, उसकी नौकरी लग गई है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, वह डॉक्टर बन चुका है, ठीक है, वह मतलब वह अंतिम सांस ले चुका है। कोई जब से बुजुर्ग लोग खत्म हो जाते हैं तो हम बोलते हैं वो तो गुजर गए, अंतिम सांस ले चुका है, ठीक है। या अब जैसे कोई आता है आपसे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, तो लोग बोलते हैं अपनी शक्ल देखी आईने में, अपनी शक्ल देखी है, ठीक है। तो वो बोलता है हाँ भाई देख के आया हूँ इसीलिए तो आ गया, अब भाई साथ में भी रखूँ, आप भी देख लो, ठीक है। तो क्या आपने कभी अपनी आईने में शक्ल देखी है? देखी है मतलब देख चुके हो, ये भी परफेक्ट टेंस है, ठीक है। क्या आपने कभी आम खाया है? बोल दे, ठीक है। क्या आपने कभी फिल्म देखी है? क्या आपने कभी अखबार पढ़ा है? क्या आपने कभी कोशिश की है? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परफेक्ट में, ठीक है। चलो, तो जैसे हम एक बात करते हैं कि वह तुम्हें भूल चुका होगा, तो क्या होगा? ही हैज़ फॉरगॉट यू। और वह तुम्हें भूल चुका था, ही हैड फॉरगॉट यू। जो कंपटीशन वाले बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं उनको बता दूं कि जब भी ये वाले टेंस का प्रयोग करते हैं हम परफेक्ट का, तो इसमें अक्सर दो बातें एक साथ होती हैं। जैसे कि शादी से पहले वह तुम्हें भूल चुका था, इसमें ये ज़रूर आता है। जैसे कि ही हैड फॉरगॉट यू बिफोर ही गॉट मैरिड, तो एक परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट सिंपल का टेंस होता है, समझ गए। जैसे कि स्टेशन पहुंचने से पहले उसकी ट्रेन छूट चुकी थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिज ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर ही रीच्ड स्टेशन, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता है कि ये, लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं तो अभी हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, समझे, ठीक है। वह है, जैसे वह तुम्हें भूल चुका होगा, तो क्या होगा? ही विल हैव फॉरगॉट यू। देखिए फॉरगॉट और फॉरगॉटन दोनों ही थर्ड फॉर्म है, ठीक है, दोनों ही प्रयोग कर सकते हो, फॉरगॉट और फॉरगॉटन। जैसे हमने कहा वह तुम्हें भूल चुका है, क्या हो जाएगा? वह मर चुका है, ही हैज़ डाइड। वो कौन सी मूवी थी? कयामत। वो एतबार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा किसी का इंतजार नहीं करना, कोई सा गाना था ना एक, है ना? तो उसमें वो बोलती है, अजय देवगन जो है जेल में बंद रहता है कहीं, जंजीर रंजीर बांध देते हैं उसको, तो वो जो एक्ट्रेस रहती है उससे पूछते हैं कि उसका नाम रचित रहता है शायद, कि वो आपको याद करता है, तो वो बोलती है कह दो उससे मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। ऐसा कुछ सुना है? कह दो उससे मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। फिर वो दूसरा एक्टर बोलता है वो भी आपकी याद में पल पल मर रहा है। तो वो कहते हैं कि उन यादों की चिता बना के उनका धुआं बना के उड़ा दे, ठीक है। फिर वो कहता है उन यादों की चिताओं से जो धुआं निकलेगा उससे भी तुम्हारी याद आएगी उसे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सोचो मतलब कितना परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है मूवी में। कह दो उससे मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। आई हैव डाइड फॉर हिम, मैं उसके लिए मर चुकी हूँ, ठीक है। वह मर चुका है, ही हैज डाइड। वह पागल हो गया है। अपने यहाँ पे अगर मान लो वो कितनी सिगरेट पीता है, अपने यहाँ लड़के अगर ऐसा कुछ पागल हो जाए, ऐसा कुछ धोखा खा जाए, सिगरेट पीने लगेंगे, फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर बीड़ी पीने लगेंगे और बीड़ी से फिर तम्बाकू खाने लगेंगे। स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी नखरे करने के लिए पैसे तो बहुत चाहिए, ठीक है। वो जो फिल्मों में जो शराब पीते हैं वो नकली रहती है, वो तो पानी यानी पीते रहते हैं, असली थोड़ी। अपने यहाँ पे शुरू में लोग महंगी वाली पियेंगे, फिर कच्ची पीने लगेंगे, और फिर बीड़ी, और फिर पता नहीं क्या, और फिर ख़त्म, ठीक है। यस ओके। तो वो सब नकली चीज़ें रहती हैं, लेकिन लोग उनको असली मान के करते हैं। अब फिल्मों में जो पीते हैं वो कलर बना लेते हैं वैसा, और फिर इतना पैसा कमाते हैं वो लोग, यार पी भी सकते हैं, उनका क्या। लेकिन अभी वर्तमान में अगर कोई ऐसा सोचे भी
तो उसके आर्थिक बोझ पड़ता है उसकी स्थिति पे, ठीक है ना, आर्थिक बोझ पड़ता है और पूरा स्थिति गड़बड़ा जाएगी, कितनी महंगी आती ये चीज़ें, तो इनसे बचना चाहिए, है कि नहीं, ये नहीं बचना चाहिए। यस, वह पागल हो गया है, ही हैज़ गॉन मैड, वह पास हो चुका है, ही हैज़ पास्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो आप परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वैसा क्या पास्ट परफेक्ट भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसमें क्या लगाना है, यहाँ पे हैज के स्थान पे हैड लगाना है, हैज के स्थान पर क्या लगाओगे, हैड, बाकी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर फ्यूचर में बनाना चाहो तो क्या लगाओगे, इसके स्थान पर विल हैव, क्या लगा दोगे, विल हैव, एनी प्रॉब्लम, इतनी सी कुल बात है। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, इसके 6 बनाएंगे, चलो और इसी को देख लेते हैं, वो तो अपने आप बन जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा तुम आ चुके हो, तो क्या बोलेंगे, यू हैव कम, वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बनाया आपने, यू हैव कम, अभी आपने बताया था हैज़ लगाया था, अब आपने हैव लगा लिया, क्योंकि आप जान गए कि परफेक्ट में हैव लगाएंगे, ठीक है। तुम आ चुके हो, तुम मुझे भूल चुके हो, यू हैव फॉरगॉट मी, तुमने ताजमहल देखा है, यू हैव सीन द ताजमहल, तुम्हारी शादी हो गई है, यू हैव गॉट मैरिड, तुम्हारी शादी हो गई है, यू हैव गॉट मैरिड। चलो ठीक है, एक हम ऐसा सेंटेंस बना लेते हैं जिसके हम 6 बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने एक बता दिया ना, वैसा आप बहुत सारे बनाया करो। जैसे हमने देखा, हमको पता है कि 2 गुणित 2 बराबर क्या होता है, 4, बस। अब इसके बाद हम और कर करके खुद भी देख सकते हैं ना कि 3 गुणित 3 बराबर क्या होता है, 4 × 4 क्या होता है, 5 × 5 क्या होता है, तो ये अपन खुद से करें, ऐसे ही सेंटेंस का सिस्टम है। एक बन गया तो बाकी आप कोशिश करना चाहिए। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे कि तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड, तुम खाना खा चुके थे, यू हैव ईटन फूड, तुम खाना खा चुके होगे, यू विल हैव ईटन फूड। चलो ठीक है, वेरी गुड। तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया था, यू हैड नॉट ईटन फूड, तुमने खाना नहीं खाया होगा, यू विल नॉट हैव ईटन फूड, ठीक है, यू विल नॉट हैव ईटन फूड। चलो, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया था, हैड यू ईटन फूड। अच्छा, ये वाले सेंटेंस में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये वाले में, ठीक है। क्या तुमने खाना खा लिया है या क्या तुमने खाना खाया, ठीक है। तो जब क्या तुमने खाना खाया तो इसे 2 प्रकार से बना सकते हैं, हैव यू ईटन फूड या डिड यू ईट फूड। क्या तुमने खाना खाया, एक्चुअली ये पास्ट का टेंस है, पास्ट सिंपल का, ठीक है। तो क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, लेकिन ये समय को प्रदर्शित नहीं करता, मतलब ये करता है कि डिड यू ईट फूड मतलब पता नहीं कब खाया तुमने खाना खाया, लेकिन ये बताता है कि अभी अभी जो काम हुआ उसके बारे में बताता है कि हैव यू ईटन फूड। मान लीजिए कोई शादी में आया है आपकी, तो आप क्या पूछोगे, डिड यू ईट फूड पूछोगे या हैव यू ईटन फूड पूछोगे, यस, क्या आपने खाना खाया, हैव यू ईटन फूड। अगर आपने पूछा डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया, हो सकता है उसने 4-5 साल पहले कभी खाना खाया हो, वो तो बता देगा यस आई एट फूड, मैंने खाना खाया, है ना। लेकिन हैव यू ईटन फूड का मतलब होता है क्या आपने रिसेंटली, हाँ, तो ये परफेक्ट है, मतलब क्या आप खाना खा चुके, क्या आप खाना खा चुके थे, हैड यू ईटन फूड। क्या आप खाना खा चुके होगे, विल यू हैव। देखो ये जो सेंटेंस है ये वाले, इनकी बहुत ज़्यादा स्पीकिंग में ज़रूरत नहीं है, समझ गए। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट की आवश्यकता है, उसके बाद कंटिन्यूस की, उसके बाद परफेक्ट की, और उसके बाद वो नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे जैसे आवश्यकता कम होती जाती है, समझ गए। सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हो उन्हीं की पड़ती है, समझ गए। हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना नहीं खाया है, क्या हो, हैव यू नॉट ईटन फूड। हैवंट भी कर सकते हो, हैवंट यू नॉट ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड। तुमने खाना क्यों खाया है, वाई हैव यू ईटन फूड। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, वाई हैवंट यू ईटन फूड, ठीक है, वाई हैवंट यू ईटन फूड। चलो, क्या तुम खाना खा चुके थे, हैड यू ईटन फूड। क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, हैड यू नॉट ईटन।
देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, हैडंट भी बोल दो तो कोई गल नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, है ना। अगर हैडंट भी बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विल यू हैव ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके होगे, क्या तुम खाना नहीं खा चुके होगे। विल यू नॉट हैव ईटन फूड, वॉन्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, वॉन्ट यू हैव ईटन फूड, हैव ईटन फूड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलो तुम खाना क्यों खा चुके थे, वाई हैड यू ईटन फूड, हम बोलते हैं ना तुमने क्यों खा लिया था, ठीक है, तुमने क्यों पहले ही खा लिया था, वाई हैड यू ईटन फूड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, वाई हैडंट यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या तुमने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है, क्या तुम खाना खा चुके होगे, क्या तुम खाना नहीं खा चुके होगे, तुम खाना क्यों खा चुके होगे, वाई विल यू हैव ईटन फूड, वाई वॉन्ट यू हैव। अच्छा, दुनिया में कोई भी काम असंभव है क्या, क्या नहीं है ना, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे सब संभव है ना। एक समय मुझे भी ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है, कहीं ये ना बोलने लगे कि सर क्या पढ़ाते हैं यार, है ना, कभी ये ना बोलने लगे कि सर तो गलती कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्या होगा, गलती इंसान से ही होती है कि नहीं होती। अगर जिस दिन ये भाव आपके मन में आ गया कि गलती इंसान से ही होती है, उस दिन आप बड़े बड़े काम में हाथ आजमा सकते हो, समझ गए, ये बात है। होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते, इसी प्रकार ऑनलाइन जब आप पढ़ाते हो तो आपने जो भी बोल दिया वो चला गया। बस दूसरा तरीका ये होता है, अगर मिस्टेक हो जाती तो आप रिकवरी कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इतने डरोगे कि कोई काम ही शुरू ना करो, ठीक है। तो यही है कि दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है, अंडरस्टैंड। इंग्लिश सीखना बहुत छोटी बात है, लर्निंग इंग्लिश इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, यू हैव अ डिटर्मिनेशन एंड you self decided to learn, definitely you will learn one day, बशर्ते कि आप लगे रहो, बीच में छोड़ो नहीं, provided you will not quit, okay। चलो, तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना नहीं खाया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने खाना क्यों खाया है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, why have you। चलो ठीक है, क्या तुमने फिल्म देखी है, हैव यू सीन मूवी, क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है, हैव यू क्लोज द डोर, क्या आपने दरवाजा खोला है, हैव यू ओपन द डोर, क्या आपने ताजमहल देख लिया है, हैव यू सीन द ताजमहल। चलो अब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सेशन खत्म, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सेशन खत्म। हैव यू सीन द ताजमहल, Yes, I have seen the Taj Mahal. Have you taken bath? नहा के आए हो, सब झूठ बोल रहे हैं, कितने लोग नहा के आए, ये देखो ये कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, कोई नहा के नहीं आया ना, कोई नहा के नहीं आया। अब तो गर्मी आ गई यार, नहा लिया करो। अच्छा जाके नहाओगे, ओके। अनुज कितने दिन में नहा लेते हो, ये वाले अनुज तुम कितने दिन में नहाते हो, डेली नहाते हो, वेरी गुड यार, कितना साहस है तुम्हारे अंदर, वेरी गुड, ओके। एक लड़का नहाता नहीं था, मैंने कहा क्यों, बोले सर वैसे ही पानी कम है, कम से कम इस वजह से हम पानी बचा सकते हैं। लड़के की बात में लॉजिक है, सही बात है, जब बहुत ज़रूरी हो तो ही नहाओ, ज़बरदस्ती में शरीर भिगाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अब काम कुछ कर नहीं रहे, घर में बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है, पर माइंड फ्रेश तो होता है। चलो ठीक है, हैव यू टेकन बाथ, यस आई हैव टेकन बाथ, अगर नहा लिया तो ठीक है। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट टुडे, यस। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यस, ओके। Have you watched movie? Yes, I have watched movie. Okay. Have you read newspaper today? Yes, I haven't read newspaper today. Okay. Have you gone mad? No, I haven't. पागल हो गए क्या तुम? No. Have you gone mad? No, I haven't. Have you passed in last exam? Yes. I have passed in last exam. ठीक है, इसी प्रकार कुछ इसके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके ऐसे पूछूंगा मैं, क्या 10वीं क्लास से पहले, क्या 10वीं क्लास से पहले आप अंग्रेजी सीख चुके थे, ठीक है, इस टाइप से। जैसे हैड यू लर्नड इंग्लिश बिफोर 10th क्लास,
आई हैडंट लर्न इंग्लिश बिफोर 10th क्लास, इस टाइप से, ठीक है। क्या आपकी मम्मी खाना पका चुकी होंगी? विल योर मदर हैव कुक्ड फूड? आंसर दीजिए। विल योर मदर हैव कुक्ड फूड? यस, यस माय मदर विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है। चलो अब मैं कोई सेंटेंस देता हूँ, ये सेंटेंस आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर देना है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। लिखो जरा पहला, कैसे भी करो, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, तुम बुरी तरह विफल हो गए हो। तुम बुरी तरह विफल हो गए हो, ठीक है, इसका करना है। दूसरा, तुम बुरी तरह विफल हो गए हो, ठीक है। दूसरा लिखो, क्या आपने कभी हॉलीवुड फिल्म देखी है? हॉलीवुड मूवी देखी है? दूसरा, मतलब नेक्स्ट, वह भटक गई है। वह भटक गई है। क्या भटकने को एस्ट्रे बोलते हैं, एस्ट्रे, ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। दूसरा, उसने अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया है। काफ़ी इजी दे रहा हूँ मैं। उसने अपना नया व्यापार शुरू कर दिया है। दूसरा, आपने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया है? आपने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया है? उसके बाद, वह कैसे मर गई है। ये मत लिखो यार, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा। ये लिख लो, वह तुम्हें कैसे भूल गई है। कैसे भूल गई है, भूल चुकी है, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। काफ़ी है ये सारे सेंटेंस, आप कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं